हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू yet another session of a solid state chapter. So in the last class we were talking about the cubic unit cells and their analysis, जिसमें हमने 5 एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली लिस्ट डाउन किए थे. दैट वाज कंट्रीब्यूशन of each lattice site in a given unit cell. The second one was number of atoms in each cubic unit cell. The third one was basically the relation between R and A, that is radius of atom, and cubic unit cells edge length. The fourth one was coordination number, and the fifth one was very simple, density of the unit cell, जिसमें हम 2 already cover कर चुके हैं. For that, just follow the link given in the description below. Let's begin with cubic unit cells and analysis by your host Manjot Singh. The first unit cell that we have with us, that is simple cubic unit cell. Let me take a moment over here and bring about certain figures to help you reach to the relation between R and A of a simple cubic unit cell. Let's see the first figure. The first figure shows basically the simple cubic unit cells crystal lattice. But actually में जब हम simple cubic unit cell का lattice देखते हैं तो actually में जो उसका crystal है वो actually कुछ ऐसा दिखता है, wherein you can see that each corner atom is actually touching each other. So corner atoms are touching each other. So if I say that radius of the atom over here is R, and very very important, the edge length of each unit cell is A. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक है तो एज लेंथ तो सेम ही रहेगा सब तरफ से. और जब ये कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो आई कैन एक्चुअली से दैट दे विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो आई कैन ब्रिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम, दैट इज R प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू A, है ना. तो हमारे पास रिलेशन आ गया, 2R is equals to A, R is equals to A by 2. So you can go with either this relation or you can go with this relation. But yes, very very important, these derivations they might be asked for 2 marker question. So make sure कि ये figures अच्छे से clear हों और ये figure draw करके आप अच्छे से उसको explain कर पाएं. तो क्या यही same relation face center और body center के लिए भी रहेगा? Let's see that. So in a face center cubic unit cell, you have a crystal lattice something like this, wherein 8 corner atoms plus face center unit cell, 6 face centers. है कि नहीं? Clear है ये चीज? 8 plus 6 total number 14 होगा? नहीं, 14 नहीं होगा मेरे बच्चे. 1/8 contribution from 8 and 1/2 contribution from face center. So total is 4. Correct? Actual crystal lattice, actual crystal जब हम देखेंगे, this was the crystal lattice, the first figure, the second figure. Actual crystal जब हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लगेगा. और उसमें आप देख पा रहे हैं that जैसे ही ये face center वाला 2 कॉर्नर एटम्स के बीच में आ गया तो 2 कॉर्नर एटम्स का जो टचिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अब. तो अब यहां पर आप रिलेशन ये नहीं निकाल पाओगे R प्लस R इज इक्वल्स टू A, बिकॉज हमारे कॉर्नर एटम्स जो हैं टच ही नहीं हो रहे हैं. तो हमें वो देखना है कि एटम्स जो हैं वो कहां पर टच हो रहे हैं. सो दैट इज वेयर द थर्ड फिगर कम्स, इंपॉर्टेंट फिगर, कि एटम्स आर नॉट टचिंग अलोंग द कॉर्नर्स, एटम्स आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल. यस, एक फेस का जो डायगोनल होता है उसके अलोंग आपके एटम्स टच हो रहे हैं. करेक्ट है? सो नाउ इफ आई टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल दिस ओवर हियर, सी दिस, और उसको नेम कर दूं ABC, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और जहां पर हमको पता है कि AB का वैल्यू इज A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, BC का वैल्यू इज A, ये हो जाएगा A स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, और AC का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा √2A. अरे होगा कि नहीं? तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब अगर मैं AC का वैल्यू R के टर्म्स में ले आऊं तो मेरा A और R के बीच में रिलेशन आ जाएगा.
और वो बहुत सिंपल है। देखो, देयर इज एन एटम ओवर हियर जिसका आर पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है इन द यूनिट सेल। फिर है मेरे पास एक पूरा फेस सेंटर एटम, तो उसका आर और दूसरा आर, बेसिकली उसका डायमीटर पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड कॉर्नर एटम का सिर्फ आर पार्टिसिपेट कर रहा है। करेक्ट, फ्रॉम द सेंटर यू कैन सी ना, फ्रॉम द सेंटर खाली इतना ही पोर्शन है उसका, बट यहां पर तो पूरा का पूरा पोर्शन है। भले ही उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है, बट है तो पूरा सेमी सर्कल भी है, तो भी पूरा डायमीटर ही पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। एंड सिमिलरली नीचे से सिर्फ आर पोर्शन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्चुअली में AC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। देखो, AC का वैल्यू इज 4R एंड दैट इज मेंशन्ड आल्सो ओवर हियर। This is your equation number 2, and now you equate 4R is equals to root 2A, you get the relation R is equals to root 2 by 4A. Correct है, simple है, easy है। So this is your face center का R और A के बीच में relation। अब कई बार ये relation जो है वो ऊट पटांग तरीके से दिया होता है। Yes, I call it ऊट पटांग only। Pardon my language over here, but why it is ऊट पटांग? पे सीधा सीधा रिलेशन है, R is equals to root 2 by 4A। अब देखो, इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं कि R is equals to root 2 by 2 into 2A लिख सकता हूं। अच्छा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 4 is 2 into 2। तो सर R is equals to root 2 by रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, तो उससे रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सर R का वैल्यू आ जाएगा A बाय 2 रूट 2। तो कुछ बुक्स में यू विल सी रिलेशन लाइक दिस इज लाइक, आई वुड नेम इट मंजूत सर्स रिलेशन, and I would name this as your ऊट-पटांग relation। अरे नहीं करना है भाई, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करना है? We have this सीधा सीधा derivation, why do we have to derive whole this thing and come to this relation over here? No, we don't want that. So you remember R is equals to root 2 by 4A in case of face center। Correct? चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट, दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर वंस अगेन क्रिस्टल लैटिस कैसा दिखता है, जिसमें 8 कॉर्नर और एक बॉडी पे। बट जब एक्चुअली में जब ये क्रिस्टल में पैक्ड होंगे, तो ये बॉडी सेंटर होने की वजह से वंस अगेन द कॉर्नर एटम्स आर नॉट एबल टू टच ईच अदर। तो फिर कहां एटम्स टच हो रहे हैं? तो दैट इज दिस, दे आर टचिंग अलोंग अ बॉडी डायगोनल। यस, 3D बॉडी डायगोनल। यहां से यहां जब मैं एक डायगोनल ड्रॉप करूं, तो ये 3 एटम्स आपस में टच कर रहे हैं। सो हाउ डू वी गेट टू द रिलेशन बिटवीन R एंड A इन केस ऑफ बॉडी सेंटर? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये फिगर। एक बॉडी डायगोनल के अराउंड जब हमारे क्या एटम्स टच हो रहे हैं, तो हम इस तरह का डायग्राम लेंगे। नाउ वंस अगेन, इफ यू सी, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। Correct? There is a right angle triangle like this. जिसमें if I just name it, since यहाँ BD लिखा हुआ है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ B और इसको नाम दे देता हूँ D। और सिंस यहाँ FD लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ F। करेक्ट? और यहाँ इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A। अब ध्यान से देखिएगा, दिस FD is a face diagonal। FD is a face diagonal. We want to reach to the relation between R and A for a body center। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। It's in a 3 step। ध्यान से देखो, रिलेट हो गया। आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। सिंपल क्यूबिक में एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया था। R plus R is equals to A। फेस सेंटर में हमको पाइथागोरस थ्योरम से पहले AC का वैल्यू निकालना पड़ा, दैट इज फेस डायगोनल का, और फिर उस फेस डायगोनल को R के टर्म्स में लेके आना पड़ा। यहां पर बॉडी सेंटर में 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे क्लियर हो गया। सो दिस इज B, दिस इज D, दिस इज F एंड दिस इज A। नाउ FD ओवर हियर इज अ फेस डायगोनल। करेक्ट?
तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल लेता हूं दैट इज AFD विच इज 90 डिग्री एट A। तो मैं लिख सकता हूं वहां पर कि FD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू FA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये है A और A, FA का वैल्यू A, तो AD का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2A स्क्वायर आएगा। समझते हो ये चीज? FD का वैल्यू, FD का वैल्यू यहां पर आएगा दैट इज 2A स्क्वायर। FD, this one, once again I am bolding it so that you understand, FD का स्क्वायर इज 2A स्क्वायर। अब ध्यान से समझना इस चीज को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई टेक अ ट्राइंगल दैट इज नथिंग बट दिस ट्राइंगल ओवर हियर, दिस वन, दैट इज FBD which is right angle at F। तो I can say that BD का स्क्वायर is equals to, that is nothing but BF का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, BF is once again A, तो BD का स्क्वायर कैन बी रिटन एज BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, दैट इज दिस, प्लस FD का स्क्वायर ये निकाला हमने, देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, FD स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, FD स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, तो उसको हमने यहां डाल दिया। और यहां से आपका BD स्क्वायर निकला दैट इज 3A स्क्वायर, सो यू गेट द वैल्यू BD इज इक्वल्स टू √3A। BD का वैल्यू मिला है, ध्यान से देखना, अभी हमने रिलेशन नहीं निकाला, BD का वैल्यू मिला है √3A, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट का तो यूज हो गया तो मैंने उसको मिटा दिया। अब ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं BD इज एक्चुअली इक्वल्स टू 4R? देखो, लेट मी जस्ट clear this figure out so that you get an explanation over here. Let me take a color which would highlight on this. Okay, so BD was this, right? Blue में highlight कर रहा हूँ, BD was this, R from this atom, R plus R from the central atom, body center, and R from this atom. So you get 4R, R plus R plus R, that is 4R. That is your equation number 3. Now 2 और 3 में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, so I can say 4R is equals to √3A, hence R is equals to √3/4A for a body center. So before we move to the next analysis, let me just take a moment over here and revise the relation. That is simple cubic में relation आएगा between R and A, that is R is equals to A/2, correct? फेस सेंटर में रिलेशन आएगा दैट इज R इज इक्वल्स टू √2A/4, और बॉडी सेंटर में रिलेशन आएगा दैट इज R इज इक्वल्स टू √3/4A। अब ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वो सिंपल बोलेगा दैट अ कॉपर मेटल crystallizes into a body center cubic unit cell where the edge length of the unit cell is found to be some x picometers. Find out the radius of the atom. तो बॉडी सेंटर से पता चला कि आपको रिलेशन ये यूज करना है, A उसने दिया हुआ है, R आपको ढूंढना है, एंड नाउ वाइस वर्सा, वो आपको रेडियस ऑफ एटम दे सकता है और बोल सकता है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल निकालो। तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, जिसमें ये दिया होगा A निकालना होगा, so A will be equals to 4R/√3। क्लियर है ये चीज? वेरी वेरी सिंपल। और हर बार आपको √3 या √2 की वैल्यू निकालनी पड़े, उससे बेटर है कि आप √2 और √3 की वैल्यू याद ही कर लो। √2 is 1.41, करेक्ट, एंड √3 is 1.73। ये दो वैल्यूज याद ही कर लो ताकि आपको हर बार ये कैलकुलेशन करना ना पड़े रूट निकालने का। परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड radius of the atom in each type of unit cell. Then moving ahead, we have the fourth portion, that is coordination number. अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस बेसिकली
I would just take a moment and correct this over here. Atoms or ions की जगह पे I would say the number of particles immediately surrounding the target particle. Instead of atom I would say particle, because particle में तीनों include हो जाते हैं, molecules, atoms and ions. और हमने देखा है तीनों तरह के हो सकते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर. याद करो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन. यस, करेक्ट. सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स immediately surrounding the target particle in a crystal lattice is called the coordination number of that unit cell. तो चलिए एक एक करके तीनों क्यूबिक यूनिट सेल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका यूज इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर में यूज होगा, सो प्लीज टेक केयर. तो लेट मी रिकॉल द क्रिस्टल ओवर हियर. लेट मी रिकॉल द क्रिस्टल ओवर हियर. ओके, सो दिस वाज द क्रिस्टल, राइट. और उसके अंदर देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. सब कॉर्नर्स पे ही दिख रहे हैं ना आपको, एटम्स जो है वो सब कॉर्नर्स पे ही दिख रहे हैं. सो मैं पहले सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा, जिसमें मैंने टारगेट एटम को हाईलाइट भी कर दिया है. देखो यहां पर मैंने यहां पर टारगेट एटम को हाईलाइट भी कर दिया है विद द कलर रेड. सेंटर आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं. तो इसको सराउंड करने वाला, इस टारगेट एटम को सराउंड करने वाले कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? सो दैट इज नथिंग बट, सी दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, दैट इज दिस. देखो अब टारगेट एटम वाज द रेड वन. अब उसको सराउंड, उसको टच करने वाले कितने एटम्स होंगे? दैट विल बी एटम नंबर 1 ओवर हियर, एटम नंबर 2 ओवर हियर, 3 ओवर हियर एंड 4 ओवर हियर, एंड देन 5 ओवर हियर एंड 6 ओवर हियर. तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी पार्टिकल को 6 सराउंडिंग एटम्स उसको टच कर रहे होते हैं. करेक्ट, इमीडिएटली सराउंडिंग द टारगेट एटम. दैट इज व्हाट वी वांटेड. तो बेसिकली जब आप इसको एक्चुअल एटम्स की तरह बिहेव करोगे तो देखो ये एक बड़ा एटम होगा, ये एक बड़ा एटम होगा. सिमिलरली यहाँ एक बड़ा एटम होगा विच विल बी टचिंग दिस एटम ओवर हियर, दिस वन. सिमिलरली ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये एटम एंड ये एटम टच कर रहा होगा. करेक्ट, इज दैट क्लियर बच्चे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यू हैव 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. But is that true for face center? No, क्योंकि उस टाइम पे यहां पर देखो फेस के सेंटर पे एक एटम आ गया होगा जो कि इन कॉर्नर एटम्स को टच नहीं करने देगा. जो हमने प्रीवियस सेक्शन में अभी देखा कि एक फेस सेंटर में कॉर्नर एटम्स जो है वो टच नहीं होते हैं, फेस डायगोनल के अलोंग टच होते हैं. तो उस केस में कैसा रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए देखते हैं उस चीज को यहां पर. लेट्स वंस अगेन रिकॉल, रिफ्रेश दिस क्रिस्टल ओवर हियर. क्रिस्टल को रिफ्रेश किया, टारगेट एटम मैंने अभी भी सेंटर वाला ही रखा है. आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही आएगा. इज दैट ओके? यू कैन इमेजिन एंड ट्राई टू थिंक ऑन इट बाय पॉजिंग द वीडियो. बट ये टारगेट एटम, अब इसको सराउंड करने वाले, इसको टच करने वाले सबसे पहले एटम्स आपको दिखेंगे ये. दैट इज फेस ऑफ दिस, फेस ऑफ दिस, फेस ऑफ दिस एंड फेस ऑफ दिस. सो बेसिकली फेस ऑफ 1 2 3 4, ये वाला जो एक प्लेन है उसके फेस सेंटर्स पे जो आपके एटम्स रहेंगे वो आपके टारगेट एटम को टच कर रहे होंगे. नॉट फिनिश्ड येट, नॉट फिनिश्ड येट, ध्यान से देखना. फिर उसके बाद आपको दिखेंगे ये वाले, देखो 5 6 7 8, ये वाले जो फेस सेंटर है वो भी तो इसको टच कर रहे होंगे, है कि नहीं? 5 6 7 8, 1 2 3 4 वाले, 5 6 7 8 वाले. सी आई हैव ट्राइड टू मेक दीज planes for you people, so try to imagine this. It's a 3D figure, correct? And then finally I will remove these two, और एक प्लेन और बाकी रह गया है. देखो एक प्लेन और बाकी रह गया, that is this one. ये वाला प्लेन जो है उसके भी तो फेस सेंटर्स जो हैं वो यहां पर क्या कर रहे होंगे बच्चे, आपके टच कर रहे होंगे इस टारगेट एटम को. सो एक्चुअली में फेस सेंटर के अंदर 12 एटम्स हैं जो आपके टारगेट एटम को हमेशा टच करेंगे. And those will look something like this. देखो आप लोगों के लिए मैंने फाइनल फिगर भी बना दिया. A plane, their face center on this plane, face center on this plane, and face center on this plane. Try to imagine this. Try to imagine this 3D figure and try to see that how I have tried to show these planes to you.
इज दैट क्लियर? सो फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया मेरे बच्चे? 12। इसी तरीके से बॉडी सेंटर के लिए लेट अस रिफ्रेश द अगेन टारगेट एटम आ गया हमारे पास। टारगेट एटम, अब फेस सेंटर में देखो, यहां पर एक फेस, पीछे एक फेस, यहां एक फेस, यहां एक, सॉरी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक। व्हेन वी नो दैट द एटम्स दे डोंट टच अलोंग द कॉर्नर्स, दे टच अलोंग द बॉडी डायगोनल्स। सो बेसिकली आपको बॉडी सेंटर में कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखो वन बॉडी सेंटर ओवर है, वन ओवर है, वन ओवर है, वन ओवर है। सो ये चार इसको टच कर रहे होंगे, प्लस ये नीचे वाले जो 4 यूनिट सेल्स हैं उसके भी बॉडी सेंटर इसको टच कर रहे होंगे। एंड दिस इज हाउ बॉडी सेंटर्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड हेंस you get the values like this. The coordination number of various cubic unit cells, simple cubic is 6, face center is 12, body center is 8. तो यहां से एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली क्लियर हो रही है कि सिंपल क्यूबिक में बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर टचिंग अ टारगेट एटम। तो सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड बीसीसी, इनमें अगर मैं पैकिंग की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एटम्स पैकिंग, तो बेसिकली सिंपल क्यूबिक में सबसे कम पैकिंग है, फेस सेंटर में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एक एटम को टच करने वाले 12 एटम्स हैं, और बॉडी सेंटर में इट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन सिंपल क्यूबिक एंड एफसीसी। और इस इंफॉर्मेशन का यूज जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे एक यूनिट सेल के लिए, तब हम आपको वहां पर बताएंगे। क्लियर तो हो गया कि पैकिंग सबसे ज्यादा एफसीसी में ही होगा क्योंकि एक एटम को 12 एटम्स टच कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में सबसे कम होगा क्योंकि उसमें लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स आर टचिंग अ टारगेट एटम। इज दैट क्लियर? परफेक्टली ओके। सो दिस वाज द फोर्थ analysis of cubic unit cell. And now the final one, I will take it in this lecture, let it become 5-10 minutes longer, but yeah, it is required to finish this part so that the flow doesn't break. So next is density of the unit cell. अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान से समझनी है कि unit cell was the smallest portion of the lattice, right? तो सर हम लैटिस के एनालिसिस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूनिट सेल का क्यों पढ़ रहे हैं? एक चीज कि यूनिट सेल पे कैलकुलेशंस करना इजी है, और समझो बच्चे यूनिट सेल इज द पार्ट ऑफ लैटिस, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो अगर मैंने यूनिट सेल के बारे में जान लिया तो एक्चुअली मैंने लैटिस के बारे में ही जान लिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ अ यूनिट सेल। सो हेंस द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल actually gives you the density of the crystal lattice, or basically the crystal. So let's see this. We know that the density of the substance is related to the mass of the substance and volume of the substance occupied, and these are related by an equation that is density is equals to mass by volume. ये तो मैं 5th standard से हम लोग कर रहे हैं। The density of a substance is mass of that substance upon volume of that substance. So therefore, the density of the whole crystal solid is actually the density of the unit cell. That is what I just said few moments back. Correct? So thus, let us say that edge length of the unit cell is discovered by a method called X-ray diffraction method. It's a very very unique machine बच्चे। ये आप इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, कोई भी इंजीनियरिंग में है आप, वहां पर आपको ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन पढ़ने में आएगा। आई हैव पर्सनली वर्कड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। बहुत मजेदार पीक्स मिलती हैं और उन पीक्स को स्टडी करने का बहुत मजा आता है। बट राइट नाउ वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वी आर सेइंग दैट वी हैव गॉट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए एंड वी हैव गॉट, वी से दैट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज डी। करेक्ट? तो अब इस डी को मुझे निकालना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को निकालना है। तो I can say density is nothing but mass of the unit cell divided by volume of unit cell. And since we are taking cubic unit cell, तो volume तो है वो तो a cube हो जाएगा, a into a। mass of the unit cell जो है वो एक इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं, let's see, let's calculate the mass of the unit cell.
mass of the unit cell will be nothing but number of atoms in the unit cell into mass of each atom. And we already saw that number of atoms in simple cubic were only 1, in FCC were 4, and in BCC there were 2 atoms. We saw that, right? So basically mass of the unit cell is nothing but Z into M, that is number of atoms into mass of each atom. बट अपने को पता है कि हम एटॉमिक लेवल तक पहुंचे ही नहीं है, तो एक एटम का मास ढूंढना नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस मास ऑफ एन एटम इनटू द मोलर मास ऑफ एन एटम. मोलर मास मतलब क्या होता है? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. तो यहां से हम इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद Na. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब mass of atom into Avogadro's number becomes molar mass, capital M, molar mass of the substance, divided by Na. This becomes the mass of unit cell. And the volume of unit cell, we have already told you, since it's a cubic unit cell, it will be A cube. Now we know that density is equals to mass of unit cell divided by volume of unit cell. Mass हमने निकाल लिया, that is Z into molar mass of the substance divided by Na, and वॉल्यूम है तो A क्यूब. तो ये बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज आई वुड टेल यू दैट सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा. और इस फॉर्मूला को देख के डरो नहीं मेरे बच्चे. इसको देख के डर लिया तो मर गए. डरना नहीं है. समझो, हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी है? एक है डेंसिटी, दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स, तीसरा है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड चौथा है यूनिट सेल का एज लेंथ. Na कांस्टेंट वैल्यू है, वो वेरिएबल नहीं है. तो कुछ भी करके वो ये 1 2 3 4 पार्ट में से, 4 वेरिएबल क्वांटिटी में से कोई 3 क्वांटिटीज आपको देगा. Now that may be directly or maybe in the form of language. For example, it would say that a copper unit cell crystallizes into BCC. ध्यान से सुनिएगा, crystallizes into BCC with an edge length of x picometers. Find out the density of the unit cell if the molar mass of the copper is 63.5. तो सीधा सीधा A तो मिल गया, सीधा सीधा मोलर मास भी मिल गया. अब सर Na तो हमें पता है, बचा D और Z, that is Z. अब Z is nothing but the number of atoms in each unit cell. तो याद करो number of atoms, that is second analysis. मैंने बोला था कि वो हॉन्ट करने के लिए आएगा बाद में. तो BCC का नंबर ऑफ एटम्स कितने थे भाई? नंबर ऑफ एटम्स अगर याद नहीं है तो डिराइव कर सकते हैं. BCC का मतलब 8 कॉर्नर प्लस 1 एट द बॉडी सेंटर. सो 8 कॉर्नर्स का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 into 8 that is 1 plus 1 that is number of atoms are 2. So Z का वैल्यू मिल गया, X मिल गया, M मिल गया, D ढूंढना है, वैल्यू डालो और आंसर निकालो. क्लियर है? श्योर है ये चीज? सो दैट विल बी ऑल विद द analysis of the unit cell. I will just revise the analysis names. First we saw the contribution, second we saw the number of atoms in each type of unit cell, cubic unit cell, third we saw the relation between R and A, fourth we saw the coordination number, and fifth we saw density of the unit cell. और उसका फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर. डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू Na. करेक्ट है? अच्छा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो क्यूबिक यूनिट सेल ना देके आपको कुछ ऑर्थोरोम्बिक टाइप दे देगा जिसमें वो A B C की वैल्यूज देगा. तो बेसिकली यहाँ पर जब तक क्यूबिक है तब तक A क्यूब, अगर क्यूबिक नहीं है तो क्या करोगे? A इंटू B इंटू C. सिंपल है. तो कंफ्यूज नहीं हो जाना बस. अगर आपको एज लेंथ अलग अलग दी हैं तो एज लेंथ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो. डेंसिटी का फॉर्मूला तो यही रहेगा. इज दैट क्लियर? आर यू श्योर विद दिस? ओके, ग्रेट. देन फॉर नाउ
wait for next lecture to come, and we are going to talk about, this is where the third flow of the chapter is over, right? First we talked about different types of solids. Second we talked about the structure of the solids. स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स में यूनिट सेल पढ़ लिया, यूनिट सेल के अंदर हमने यूनिट सेल के एनालिसिस पढ़ लिए. अब हम थर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज पैकिंग. करेक्ट? एंड दैट विल कम अप इन द नेक्स्ट क्लास in a very interesting way. Till then, please take care of yourself. Bye bye.